नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, लेकिन उससे पहले आज मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि आज हम दोनों भाई जुड़े हैं, संजीव अरोड़ा और संजीव अरोड़ा। तो थैंक यू जी, तो आज हम एज अ गेस्ट स्पीकर भी संजीव अरोड़ा जी हैं और एज अ होस्ट भी संजीव अरोड़ा हैं। तो आज कुछ डिफरेंट होने वाला है और आप सब लोगों का जो रियल एस्टेट को लेकर जो आपकी धारणाएं हैं या जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उसमें रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका क्या रोल है, वो किस तरह से हेल्प करती है, आज सब कुछ हम जानेंगे संजीव जी से। सबसे पहले संजीव जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू जी, तो दोस्तों, संजीव अरोड़ा जी बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिछले कई सालों से ऑडिटिंग टैक्सेशन में जुड़े हैं और अभी हाल ही में उन्होंने रेरा के साथ भी एज अ एडमिन टीम इन्होंने काम किया है। तो आज हम रेरा के बारे में बात करने वाले हैं। संजीव जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, क्वेश्चन आंसर का सेशन करने से पहले, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस से शेयर करें। See, I qualified CA in 1984, and since then I had been doing my private practice in the field of taxation, auditing, accounting, bank audits, NBFCs, CAG audits and all that. और फिर मन में एक इच्छा थी कि सोसाइटी के लिए कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ डिलीवर करना चाहिए। तो मुझे ऐसा एक अवसर प्राप्त हुआ 2022 में, अगस्त 2022 में। उसमें मुझे रियल एस्टेट अथॉरिटी गुरुग्राम में एज मेंबर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अपॉइंट किया। 30 अगस्त 2022 को मैंने ज्वाइन किया था। और क्योंकि उसमें एक कंडीशन रहती है कि यू आर ए मेंबर फॉर 5 years और टिल यू अटेन द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। तो बाय चांस it happened that I attained age limit of 65 on 17th of August 2024. So I superannuated on that date. But that was a very wonderful journey. I learned a lot and tried to deliver best possible in improvement of real estate sector. The basic theme of bringing RERA, Real Estate Regulatory Authority, Real Estate Regulation and Development Act, was transparency and accountability. The major theme was that. So जी. for that, there are certain provisions that every builder is bound to get a new project registered with RERA prior to its launching. During my profession, I have done concurrent audit of more than 50 banks branches and more than 20 CAG audits, more than 200 private limited or limited companies or private sector audits. And I have participated a lot in direct taxes assessment and filing of returns and all that. And there is a provision that every CA student is bound to get himself enrolled under a chartered accountant, under a practicing chartered accountant. So that way I am lucky enough
to train about 160 CA students for 3 years, and out of that, almost 135 are well settled and doing their own practice or service. Some of them, as CA is quite a hard syllabus, some of them could not do and they shifted to business or some other job. But what I mean to say that I am lucky to uh, guide or to advise around 160 CA students during my tenure of that 40 years of CA practice. जी, थैंक यू अरोरा साहब। आगे हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जो हमारे ऑडियंस में पहला क्वेश्चन है सर, क्योंकि हर तरह के ऑडियंस हैं और रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम हमारे ऑडियंस को आप बताएं रेरा एक्चुअल में है क्या और वो किन के लिए है, किन के लिए हेल्पफुल है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनी वो किन के लिए बनी, एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग और किन के लिए हेल्पफुल है ये। As all of us must be aware that real estate is the largest employment provider sector and it plays a vital role in the GDP of the country. And it was being uh, progressing in an unorganized manner. There were not certain norms or provisions which were applicable pan India. So the RERA Act was introduced in 2016, and since the land is a state matter, regulations were left out on various states. Rules and regulations were left out on various states, although within certain parameters, but certain leverage was given, certain flexibility was given for the state governments to frame their own rules as per their requirements. So, in most of the states, RERA came into existence in 2017 when the rules were framed and published and notified. So, why RERA? RERA was basically introduced for bringing transparency and clear cut responsibility and accountability in the real estate sector because it was growing in an unorganized way. So, RERA is basically for allottees, but since as the act itself states Real Estate Regulation and Development Act, so it takes care of promoters as well. So it is dealing with promoters as well as allottees. It helps in uh, delivering good results to the allottees, certainly, but it helps to the promoters also because in case some notorious type of allottees or some mischievous persons enters into a project and start spoiling the things, then promoters have also the option to approach RERA for certain ramifications of those things. Certain results can be obtained. They can also file a complaint. So it is for promoters as well as allottees both. जी सर, इसमें जो अलॉटीज हैं और प्रमोटर्स हैं, क्या इनको किसी तरह की कोई मेंबरशिप या कोई रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। जो प्रोमोटर्स हैं उसमें रेरा एक्ट में ही प्रोविजन है कि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कोई भी आप 8 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे, एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए और यूनिट्स मोर देन 8 होने चाहिए, तो उस केस में यू आर बाउंड टू गेट योर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड विद रेरा ऑफ दैट वेरी स्टेट in which you are going to develop it. That is a mandatory thing. And there are very harsh provisions, panel provisions also. If somebody is found to be developing a project without getting it registered with RERA, there is a panel provisions of
penalty, financial penalty to the tune of 10% of the total cost of that project on the builders. जी सर, इसके अलावा जैसे अब आपने ये तो नॉर्म्स बता दिए, नॉर्म्स के अलावा अक्सर देखा गया है कि जो आपने अभी जैसे बताया कि मिस्चीवियस लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए रेरा की फॉर्म किया गया रेरा को, तो अक्सर देखा गया कि जो बिल्डर्स होते हैं वही ऐसी मिस्चीवियस भरी एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसा और क्या क्या उन्होंने नॉर्म्स किए हैं कि इससे बचा जा सके ऐसे लोगों से? रेरा में ये प्रोविजंस हैं कि अलॉटीज को तो राइट्स हैं ही हैं कि जी अलॉटीज को राइट्स क्या हैं कि उनको जैसे बिल्डर्स के लिए एक बाइंडिंग लगा दी कि 10% से ज्यादा आप अलॉटी से नहीं लोगे विदाउट एंटरिंग इनटू द बिल्डर बायर एग्रीमेंट एंड दैट टू गेटिंग इट रजिस्टर्ड विद द रेलेवेंट तहसील। जी कोई भी बिल्डर 10% से ज्यादा टोटल अमाउंट, टोटल कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा नहीं ले सकता जब तक वो उस पर्टिकुलर बीबीए को जिसके तहत आपको अलॉटमेंट किया गया है जी उसको रजिस्टर नहीं करवा लेता तहसील में। जी उसका उसका एस्पेक्ट ये था कि कोई बिल्डर मनमानी नहीं कर सके, कोई अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं कर सके बाद में, क्योंकि जब एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट तहसील में रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद उसको कैंसिल भी तहसील में ही करना होता है, ऑन ऑन इट्स ऑन नहीं कर सकते। जी प्रायर टू रेरा ऐसा होता था कि लोग अलॉटमेंट कर देते थे, पैसे भी लेते रहते थे, उसके बाद कई बार मनमानी करने से किसी का अलॉटमेंट कैंसिल भी कर देते थे। जैसे मान लो किसी कारणवश कोई अलॉटी पेमेंट नहीं कर पाया या कुछ और फॉल्ट रहा तो उसका अलॉटमेंट कैंसिल भी कर देते थे। जी तो अलॉटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेरा एक्ट बेसिकली बनाया गया। लेकिन कुछ अलॉटीज भी ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट में मान लो 20 यूनिट बुक कर ली अपना कॉमर्शियल एंगल से, जी और फिर उसमें से 2 के पेमेंट करते रहे, बाकी 18 की पेमेंट ही नहीं कर रहे। दैट वे अगर मान लो एक प्रोजेक्ट में 500 यूनिट हैं तो 500 यूनिट में से अगर 50 लोग ही पेमेंट करेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे खड़ा होगा? अगर 450 लोग खाली कॉमर्शियल एंगल से लेके बैठे रहेंगे, जी जैसे हम एक जनरल भाषा में कहते हैं कि जैसे बयाना दे के उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उससे तो वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसके जी तहत बिल्डर्स को भी ये राइट दिया गया कि अगर एज पर शेड्यूल जो कि अलॉटमेंट के टाइम ही या बीबीए के एग्जीक्यूशन के टाइम ही बता दिया गया है, उस तरीके से अगर अलॉटी पे नहीं करता तो उनको भी राइट है, वो भी रेरा में कंप्लेंट फाइल करके उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। रेरा जी बिल्डर्स को डायरेक्शन दे सकता है कि ठीक है, जो डिफॉल्टर है उसका आप कैंसिल कर सकते हो। जी सर, इसमें आपके अकॉर्डिंग और जो रेरा में भी और क्या सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि हर जब भी अथॉरिटी बनती है तो उसमें नेचुरली वक्त के साथ पता लगता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, या क्या पॉजिटिव है हम्म क्या नेगेटिव है, और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग रेरा में और क्या क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, रेरा में अभी तक 2017 में एक्ट बना, उसके जी बाद कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। तो अमेंडमेंट तो बहुत अर्जेंट रिक्वायर्ड है। सबसे जी पहला तो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है कि जो मेंबर्स या चेयरमैन अपॉइंट होते हैं रेरा अथॉरिटी के, जी उसमें मेरे माइंड के हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से, उसमें एक लीगल पर्सन होना चाहिए, एक टेक्निकल पर्सन होना चाहिए जो टाउन प्लानिंग से हो, एक पर्सन फाइनेंशियल साइड से होना चाहिए जो कि एमबीए फाइनेंस हो या सीए हो या आईसीडब्ल्यू हो, जो कि इकोनॉमिक्स को समझता हो, फाइनेंस को समझता हो। और फोर्थ, आईपीएस आईएएस एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो सकता है। जनरली हर अथॉरिटी में 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 3 मेंबर। जी और मेरा व्यू ये है कि हर अथॉरिटी में एक फाइनेंशियल मेंबर जरूर होना चाहिए, एक टेक्निकल मेंबर जो कि टाउन प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट्स को जानता हो, समझता हो, और एक लीगल मेंबर जो कि लॉ पॉइंट को समझता हो, और एक एडमिनिस्ट्रेशन एंगल से। एक तो ये एक प्रोविजन की जरूरत है।
अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसके मेंबर बनाए जा सकते हैं। जी। हालांकि मेंबर्स को अपॉइंट करने की प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। एनी जज nominated by the chief justice of that very state, that very high court of that state। जी। उसके बाद वो जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे डबल या ट्रिपल ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स वो गवर्नमेंट को एक अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, 1 2 3 ऐसे सीरियल में। देन स्टेट गवर्नमेंट को वो उसमें से सेलेक्ट करना होता है। जी। प्रक्रिया बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में अगर ये ध्यान में रखा जाए कि तीनों फील्ड से एक एक पर्सन आए, लीगल से भी, टेक्निकल से भी और फाइनेंशियल से भी, तो इसमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जी। बिकॉज मतलब इट इज वेरी क्लियर कि अगर मान लो टाउन प्लानिंग से या खाली लॉ से, लीगल से ही, या आईएएस आईपीएस लोग ही हों और उसमें फाइनेंशियल पर्सन ना हो, तो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है उनको फाइनेंशियल एंगल को समझना। और क्योंकि ये प्रोमोटर्स और अलॉटीज का इस तरह का सिस्टम है जिसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व है ही है, इसलिए फाइनेंशियल पर्सन होना चाहिए। जी। और दूसरा, इसमें एक प्रोविजन एक्ट में तो डाला गया है कि सेक्शन 16 है जिसमें हर प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। लेकिन अभी तक वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा किसी भी स्टेट में, किसी भी, नॉट ओनली हरियाणा, किसी भी स्टेट में पैन इंडिया वो इंश्योरेंस एस्पेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और इसके अलावा क्या है कि जैसे अलॉटीज के लिए ये एक प्लेटफॉर्म, स्पेशल प्लेटफॉर्म दिया गया रियल एस्टेट सेक्टर के अलॉटीज के लिए, जिसमें ये था कि भाई अर्लीस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन हो डिस्प्यूट का। तो उसमें कॉन्सिलिएशन कॉन्सिलिएशन सेल, जो कि मतलब बीच बिचाव बैठ के अपना आपस में सुलझा सकें बातचीत के जरिए, उन कॉन्सिलिएशन सेल्स की भी और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल प्रोविजंस हैं जिसके लिए रिकमेंडेशंस गई हुई है, और रियल एस्टेट अथॉरिटी हरियाणा गुरुग्राम से भी गई हुई हैं, महाराष्ट्र से भी, यूपी से भी, जो कि अभी, क्योंकि ये रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट अथॉरिटीज जो हैं इनका ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से है, जी। सेंटर से। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर आता है ये। तो जी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को सब रिकमेंडेशंस गई हुई हैं, उस पे अभी एक्शन लेना पेंडिंग है। जी। तो उस एंगल से अलॉटीज के हित को देखते हुए, और दूसरा क्या है कि इसमें एक जैसे बहुत बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेवारी सीएस पे डाली गई है जी। कि जो प्रोमोटर होता है उसको एक सेपरेट अकाउंट खोलना होता है अपने हर प्रोजेक्ट का। तो सर, आपने जैसे अभी फाइनेंशियल्स की बात की, स्टेट के ऊपर बात करेंगे अभी। जो आपने फाइनेंशियल्स की बात की, तो फाइनेंशियल्स में आप, जैसे आप भी बाय प्रोफेशन सीए हैं और आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर एज ए मेंबर, तो हम्म। सीएज और एडवोकेट्स का क्या क्या रोल है सर यहाँ पर? अगर हम एज ए एलओटी बात करें या एज अ कोई भी प्रमोटर की बात करें, तो सीए और एडवोकेट्स का क्या क्या रोल है सर यहाँ देखो, एडवोकेट्स का तो मेनली रोल आता है जब कोई कंप्लेंट फाइल करता है। पर? जी। क्योंकि रियल एस्टेट अथॉरिटी में दो एस्पेक्ट हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है जी। जिसमें उन्होंने बिल्डर्स को मॉनिटर करना होता है, जी। ताकि बिल्डर्स बिल्डर्स जो एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं, जो उन्होंने लॉन्च किया है वही चीज डिलीवर हो, उसी प्राइस पे डिलीवर हो, उसी टाइम लाइन में डिलीवर हो। वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। दूसरा होता है क्वासी जुडिशियल। रेरा इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी आल्सो, जो कि
रेरा मतलब रियल एस्टेट सेक्टर के अलॉटीज और प्रोमोटर्स के बीच में जो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, या कोई प्रोजेक्ट में डिले है, या कोई एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहा है बिल्डर, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए एक अलग से एक लीगल बेंच बनाया जाता है हर अथॉरिटी में। उस बेंच में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हैं अलॉटी। उस कंप्लेंट की एक कॉपी बिल्डर्स को भेजी जाती है। उसके विद इन 60 डेज उसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, और कोशिश ये रहती है कि विद इन 1 ईयर या 1.5 साल में उस केस का जो भी है कंक्लूड कर दिया जाए, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ द अलॉटीज एज वेल एज द प्रोमोटर्स। जी। उसमें एडवोकेट्स का काफी रोल रहता है। ऑल्दो अलॉटी खुद भी अपीयर होके अपना पक्ष रख सकता है, किसी सीए, आईसीडब्ल्यूए या किसी भी और पर्सन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जनरली इसमें एडवोकेट्स का रोल रहता है। और जहां तक सीएस का सवाल है, सीएस का रोल तो जब प्रोजेक्ट का कंसेप्शन होता है, प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसी इनिशिएशन होता है, उसी टाइम से शुरू हो जाता है। बिकॉज जो सीए, जो ये एक प्रोविजन है कि हर प्रोजेक्ट जिसकी लैंड 500 मीटर से ज्यादा है और 8 से ज्यादा यूनिट बनने वाले हैं, उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेरा अथॉरिटी में फाइल होती है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए के थ्रू ही बनती है। उसमें जो प्रोमोटर्स हैं उनके नेटवर्थ के बारे में उसका सर्टिफिकेशन करना होता है, वो भी सीए ही करता है। उसके बाद रेरा अथॉरिटी ने सेक्शन 4 में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सीएस पे डाली हुई है कि हर प्रोमोटर हर प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलेगा, जिसमें अलॉटी से जितना पैसा लेगा वो उसी अकाउंट में डिपॉजिट होगा, और उस बैंक अकाउंट से जो विड्रॉल है वो सीए के सर्टिफिकेट के बाद ही अलाउ होगी। प्रोमोटर ऑन इज ऑन विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक वो सीए का सर्टिफिकेट along विद आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर दोनों का सर्टिफिकेट दे दे बैंक को। उसके बाद ही बैंक उसको अलाउ करेगा उसमें से विड्रॉ करने के लिए। तो सीए का रोल वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हर प्रोमोटर को क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करनी होती है, वो भी सीए ने सर्टिफाई करनी होती है। उसके बाद एनुअल ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है हर प्रोजेक्ट की, साल के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको भी सीए ने सर्टिफाई करना होता है। तो सीए का तो अहम रोल है ही इसमें रेरा प्रोविजंस में। सर, अभी ये सीए और एडवोकेट्स की बात हो गई, अभी आपने एक बात बोली थी कि स्टेट वाइज भी ये रेरा का रोल रहता है। तो क्या स्टेट वाइज रेरा का अलग अलग प्रोविजन रहता है या सबका एक ही कॉमन ऑफिस होता है? और जैसे आपने नहीं, बताया। जैसा मैंने बताया। जी हाँ जी। सर, जैसे आपने, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। जैसे आपने बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर, है ना? तो हम्म आपस में ये स्टेट के डिफरेंट, स्टेट वाइज डिफरेंट हैं, और सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉमन है या डिफरेंट है, और आपस में क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, ये आप थोड़ा सा प्लीज क्लियर करें। जैसे मैंने अभी बताया कि रेरा एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट में पास हुआ 2016 में। उसके बाद सभी स्टेट्स को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट में लैंड जो है मेनली एक स्टेट मैटर है, उसमें लैंड की रजिस्ट्री, लैंड का जो भी डायमेंशंस या वो सब चीजें स्टेट वाइज रेगुलेट होती हैं। कहीं पर 1 एकड़ में कितने स्क्वायर यार्ड काउंट होते हैं, कहीं पे 1 बीघा में कितने स्क्वायर यार्ड काउंट होते हैं। इस तरह से कुछ सिस्टम स्टेट वाइज हैं, और उसके रजिस्ट्री चार्जेस वगैरह भी स्टेट वाइज होते हैं। तो इसलिए इसके रेगुलेशंस और रूल्स, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी लिबर्टी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई कि आप अपने हिसाब से विद इन द ब्रॉड पैरामीटर्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हो और उसको गजट नोटिफाई कर सकते हो। और वो ही किया गया सभी स्टेट्स में। सेंट्रल एक्ट जो है वो एक्ट एज इट इज
पूरे स्टेट्स में एप्लीकेबल है इंडिया में, लेकिन उसके रूल्स थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेते हुए हर स्टेट ने अपने बनाए हुए हैं। और इसकी और एक अच्छी बात क्या है कि सभी रेरा अथॉरिटीज ने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसको बोलते हैं आई फॉर रेरा, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट अथॉरिटीज। उसके तहत क्या होता है कि सभी रेरा के जो अथॉरिटीज के चेयरमैन है वो उस काउंसिल के मेंबर होते हैं। वो लोग आपस में सभी डिस्कस करते हैं ऑन एवरी अल्टरनेट मंथ और क्वार्टरली बेसिस। और फिर अगर कोई चेंजेस लाने हैं रूल्स में रेगुलेशंस में तो वो उस काउंसिल में डिस्कस करके उसके बाद अपनी अपनी अथॉरिटीज में उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री का रोल ये रहता है कि जो एक्ट के तहत प्रोविजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। एक्ट में कोई फर्दर अमेंडमेंट की रिक्वायर्ड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद लेकिन वो अमेंडमेंट होगी एक्ट में सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे ही। स्टेट अपने आप उस एक्ट को अमेंड नहीं कर सकता, रूल्स जी। में मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने अपने स्टेट में। तो सर स्टेट से कोई कोऑर्डिनेशन का के बारे में कुछ बताएं कि आपस में कोई भी केस होता है तो क्या कोऑर्डिनेशन रहता है? आपस में स्टेट्स का मैंने बताया कि जैसे सभी, जैसे मान लो 28 जगह पे अथॉरिटीज बनी हुई हैं तो जी। 28 अथॉरिटीज का एक आई फॉर रेरा फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रेरा अथॉरिटीज बना हुआ है। जी। उसमें सभी रेरा अथॉरिटीज के चेयरपर्सन जो हैं वो उसके मेंबर होते हैं। उसको एक काउंसिल बोला जाता है। काउंसिल में वो सब लोग बैठते हैं और उसी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग भी रहते हैं। जी। और कभी जरूरत होती है तो जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो भी उस काउंसिल में अटेंड करते हैं, उस मीटिंग को अपना व्यू देते हैं, एड्रेस जी। करते हैं। और जो भी कोई मॉडिफिकेशन रूल्स रेगुलेशंस में अपने लेवल पे करना होता है वो जनरली उस काउंसिल में डिस्कस हो जाता है। और दैट वे वो मतलब एनोनिमिटी बनी रहती है सब में। जी। सर इसमें जैसे बताया कि कोई भी मतलब ये अथॉरिटीज या कोई भी ये बनता है तो कोई भी कमेटी बन फॉर्म की जाती है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनी जाती है। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज भी करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये जो कम्युनिटी है या अथॉरिटी है बनाई गई। लेकिन फिर भी हम्म। जो है कि अच्छाई और बुराई हर जगह देखी जाती है। तो अलॉटीज के लिए क्या मतलब रास्ता होता है कि क्या उनको सिंपली ऑनलाइन ही ये करना पड़ता है? जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन वो केस फाइल कर सकते हैं या ऑनलाइन वो 60 डेज में उसका होता है, या उसके अलावा भी कुछ जैसे देखा गया ना कि अगर कोई आम आदमी अगर कोई केस लड़ता है तो एक तो कॉस्टली अफेयर होता है और एक पता नहीं सालों साल चलता है। तो यहाँ पर भी क्या ऐसा ही होता है या यहाँ जल्दी सुनवाई होती है और नहीं, कॉस्टली इसमें अफेयर? जी। जी बताएं। इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो क्वासी जुडिशियल एस्पेक्ट है जो रेरा डील करती है हर स्टेट का, उसमें अलॉटी अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर देता है। जी। और उसकी फीस केवल 1000 रुपीज ही होती है, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं है। किसी स्टेट में हो सकता है 500 रुपये भी हो, किसी स्टेट में हो सकता है 1500 रुपये भी हो। जी। और कोई बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसमें ये कंपल्शन नहीं है कि आपका एडवोकेट ही अपीयर होगा। आप जी। खुद भी अगर जानते हो अपने सब्जेक्ट को तो आप खुद भी अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो। और जहां तक इसके डिस्पोजल का सवाल है, कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 ईयर में वो केस डिस्पोज हो जाए। क्योंकि ये कोई एविडेंशियल कोर्ट नहीं है। जी। मतलब इसमें एविडेंशियल तरीका नहीं अपनाया जाता। इसमें जो प्रोमोटर पेपर फाइल कर रहा है उसकी कॉपी अलॉटी को दी जाती है, जो अलॉटी फाइल कर रहा है उसकी कॉपी प्रोमोटर्स को जाती है।
दोनों उसको एक्सचेंज करते हैं, दोनों उस पे अपने क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3-4 हियरिंग में वो मैटर सॉल्व हो जाता है। जी ठीक है सर। सर आज के लिए इतना ही है सवाल हमारे पास, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाने से पहले राइट मैं सर। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो। I just want to convey that the time has come that real estate is not an unorganized sector now, and since real estate sector is the largest employment provider sector and it is contributing lot to the GDP of the country, so we all should come forward and should give our suggestions if any, and should try to uh, be a part of this journey and transparency and accountability. जी जैसा कि हमारे सेंटर का भी मैसेज है, मतलब सबके लिए घर देना और वो करना, उसके लिए तभी पॉसिबल होगा जब हम सब इसमें जुड़े रहेंगे और अपने अपने सुझाव भी देंगे। कोई किसी तरह की कोई कमियां नजर आती हैं तो वो भी पॉइंट आउट करेंगे विद कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, और जी हम इस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रेरा से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे वो आज संजीव जी ने जवाब दिए। और भी अगर आपका कोई भी जवाब होता है तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आकर आप अपना नाम रजिस्टर करके आप सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों एक मैसेज मैं आज आपको फिर से देना चाहूंगा। हमारा ये जो सीरीज चल रहा है भारत की आज़ादी के 100 वर्ष, हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं। और पिछले एपिसोड्स में हमने शेयर किया कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज हमसे संजीव जी ने भी शेयर किया कि क्या क्या जो रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे, चाहे वो मिस्चीवियस एक्टिविटीज की वजह से थे, चाहे वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से थे, वो अब उनमें भी काफी सुधार किया गया है और आगे सुधार किया जा रहा है। जरूरत है हमें जागरूक होने की और इम्प्लीमेंटेशन करने की। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रास्ते हैं, नॉलेज भी है, मेंटर भी हैं। तो बस अगर जरूरत है तो इम्प्लीमेंटेशन की। तो आपके सुझाव और अगर कोई सवाल है उसका हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम मिलेंगे फिर एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।